دل دریا، شرون کمار کا افسانہ۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، لوٹ کر دھرمشالہ جانے کو بھی من نہیں چاہتا۔ ایک عجیب سا دکھ، عجیب سی اداسی سارے وجود پر چھا گئی ہے، ایسا گہرا اور لمحہ بلمحہ پھیلتا ہوا دکھ جو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ شاید یہی وہ دکھ تھا جس نے گوتم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ دریا پر رات اتر آئی ہے اور گھاٹ کی روشنیاں مند مند بہتے پانی پر جھلملا رہی ہیں۔ مندروں میں شام کی آرتی کے بعد خاموشی چھا گئی ہے، ایسی خاموشی جو مقدس بھی ہے اور پراسرار بھی، بالکل خدا کے وجود کی طرح۔ دریا کے پار سادھوؤں کی ایک ٹولی الاؤ جلائے بیٹھی ہے۔ فضا میں کبیر کے دوہے کی سی نرم گمبھیرتا اور اداسی ہے، اور میں گنگا کو دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ سادھو ہو جاؤں، یہی مکتی کی راہ ہے۔ میں بیٹھ گیا، ہر کی پوڑی ٹھنڈی ہے اور یہی بے جان سی ٹھنڈک فضا میں بھی ہے، بالکل ہمارے گھر کی طرح۔ گھاٹ سنسان ہے، مجھے غور سے دیکھنے والا جٹادھاری سادھو کھڑا پل پار کر چکا ہے، اور وہ گھی کے چراغ میں نے پاروتی کی آتما کی راہ میں روشنی کرنے کے لیے ان پوتر لہروں پر بہائے تھے، ڈولتے ہوئے دور چلے گئے ہیں۔ ادھر جہاں سمندر ہے وسیع و عمیق، اور وہ ذرا فاصلے پر جلتی ہوئی زرد بتی بالکل اکیلی اکیلی سی لگ رہی ہے، اور یوں چپ چاپ اداسی سے سب کچھ دیکھ رہی ہے، جیسے پاروتی اپنی کھڑکی کی سلاخیں تھامے کھڑی بچوں کو کھیلتے دیکھا کرتی تھی۔ پاروتی ہماری کوئی نہیں تھی، پڑوسن بھی نہیں۔ کبھی وہ ہمارے مکان کے ایک حصے میں کرایہ دار تھی اور اپنی بیوہ پھوپھی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، پتا جی کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ماں اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ یہ سب باتیں مجھے گاہے بگاہے دیدی سے معلوم ہوتی رہی ہیں، جس نے یہ سب کچھ ماں اور دادی سے سنا تھا۔ پاروتی کے ماں باپ نہیں تھے اور اس کی پرورش اس کی بیوہ پھوپھی نے کی تھی۔ دادی نے ایک دن اس کا سامان اٹھوا کر گلی میں رکھوا دیا کہ اسے جگہ کی ضرورت ہے۔ پتا جی کی شادی جو تھی، ماں کو دادی اس کی پیدائش سے پہلے ہی پیار کرنے لگی تھی، یعنی جب وہ ہماری نانی کے پیٹ میں ہی تھی تو دادی نے اسے اپنی بہو بنا لیا تھا۔ اس طرح وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس گھر میں آ گئی تھی۔ دادی پٹواری کی بیٹی اور تھانے دار کی بیوی تھی، اس لیے ہمیشہ حکومت کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ ان کے آگے چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی۔ دادی میری پیدائش سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی، جہاں جنت میں خدا اور جہنم میں شیطان کی حکومت ہے۔ نہ جانے وہاں کیا کرتی ہوگی، شاید چڑیوں کو اڑتے دیکھتی ہو۔ پاروتی اور اس کی پھوپھی ہمارے مکان سے نکل کر اس مکان میں رہنے لگی جس میں آخر تک پاروتی رہی۔ اس کی پھوپھی غریب تھی اور بوڑھی بھی۔ اس نے بہترا چاہا کہ پاروتی کی شادی ہو جائے، لیکن پاروتی ہمیشہ انکار کرتی رہی، اور جب پھوپھی بھی مر گئی تو کہنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ پاروتی میری کوئی نہیں تھی، پھر بھی اپنی بہت زیادہ اپنی لگتی، ایسی جو دل میں روح میں اپنی ہوتی ہے اور ذہن پر چھائی رہتی ہے، اور ہم ہر جگہ ہر لمحہ اسے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ وہ کھڑکی اس کھولے میں کھلتی ہے جہاں گلی کے بچے کھیلا کرتے تھے اور شور مچاتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے، پھر فوراً من جاتے تھے۔ اسکول کی طویل قید اور گھر کی پابندیوں کے بعد یہ اچھا لگتا تھا، میں بھی اسکول سے وہیں آ جاتا۔ نہ جانے کیوں پاروتی کے مکان کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونا دل کو بھاتا تھا، شاید اس لیے کہ دیوار کے پیچھے اس مشین کی آواز ہوتی تھی جس پر پاروتی محلے والوں کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ جب وہ کھڑکی میں آتی تو ہم سمجھ جاتے کہ اسے سوئی، بٹن یا دھاگے کی ضرورت ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور مجھے ڈر لگتا کہ کہیں وہ مجھ سے نہ کہہ دے۔ کیا میں انکار کر سکوں گا؟ میں چاہتا بھی تو تھا کہ وہ اپنے سب کام مجھ سے کرائے۔ اس کی شخصیت ہی اس قدر پرکشش تھی، اس کی آواز اتنی میٹھی تھی، اور کیا میری ٹانگیں مجھے گلی کے باہر اس دکان تک لے جائیں گی؟
जहां ये सब कुछ मिलता था। माँ की सख्त हिदायत थी कि उससे बात भी न करो, लेकिन वो मुझसे नहीं कहती थी। उसकी नजरें एक पल के लिए मेरे चेहरे पर ठहरती। वो मुस्कुराती जैसे मेरे ख्यालात पढ़ रही हो। बड़े होने के कितने फायदे हैं। वो किसी और को बुलाकर चीज मंगा लेती। मेरा दिल उस कोयले की तरह बुझ जाता जिस पर पानी डाल दिया गया हो। फिर मैं सारे कंचे हार जाता। मुझे हारना ही अच्छा लगता। पार्वती मुझे देखकर मुस्कुराई थी। मैं दीदी को बताता। "श्श, माँ सुन लेगी", दीदी कहती। माँ हमें इस बात से माँ हमें उससे बात करने से क्यों मना करती है? वो हमारी दुश्मन है। माँ कहती थी पार्वती अच्छी औरत नहीं है, वरना उससे कोई शादी न कर लेता। और यह कि वो जादू टोना करती है। मैंने सुन रखा था कि जादू टोना करने वाली औरतें आदमी को भेड़िया या कुत्ता बनाकर कैद कर लेती हैं और कभी आजाद नहीं करती। मैं कंचे खेलता हुआ उसे गौर से देखता तो वो मुझे जादूगरनी बिल्कुल न लगती। उसका चेहरा गोल और खूबसूरत था और आंखें बड़ी बड़ी और काली। वो बाल हमेशा खुले रखती थी, जिसमें कभी कभी मुझे डर लगता। मैं जब उसे देखता तो मुझे माँ के पूजा के कमरे में रखी चांदी की लक्ष्मी याद आने लगती। और लक्ष्मी की तो माँ पूजा करती थी, फूल चढ़ाती थी और आरती उतारती थी, लेकिन पार्वती को गालियां देती थी और कोसती थी। मैं पिताजी से पूछता कि माँ ऐसा क्यों करती है, तो वो यूं मेरी तरफ देखते जैसे मेरे आर पार देख रहे हों। मुझे उनका इस तरह देखना हमेशा अजीब सा लगता है और उससे खौफ भी आता है कि हम खुद को उन नजरों के सामने महफूज महसूस नहीं करते और कोई राज राज नहीं रहता। और जब हमारा राज राज न रहे तो जिंदगी क्या हुई, हमारे वजूद के मानी क्या हुए। शख्सियत में थोड़ा सा इसरार तो होना होना चाहिए। इस तरह आदमी इम्पोर्टेंट बना रहता है। वो मुझे जब भी इस तरह देखते तो मैं अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता और मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता कि मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकता था। सिर्फ उनका चेहरा, नाक, कान, हाथ पांव देख सकता था। माँ ने बचपन में बताया था कि यही तुम्हारा बाप है। सब माँ शायद यही बताती हैं, मासूम बच्चों को धोखा देती हैं। लेकिन दरअसल वो बाप नहीं होता जिसे हम देखते हैं। बाप तो उसके अंदर बहुत गहराई में कहीं छुपा होता है, जिसे हम में से बहुत कभी नहीं देख पाते और समझ लेते हैं कि यही सच्चाई है जो हम देख रहे हैं। पार्वती जादूगरनी है? मैं पूछता। जादू कोई चीज नहीं। तो फिर माँ क्यों कहती है? आदमी को वही बात माननी चाहिए जिसे उसका यकीन हो। इसे भी किसी काम का न छोड़ना। माँ ऐसे मौके पर न जाने कहां से आ टपकती। जब पिताजी की बातें अच्छी लगने लगती और दिल उनके पास बैठने को चाहता तो वो चली आती। चल पढ़ जाकर। पिताजी खामोश हो जाते। उसके बाद ऐसा महसूस होता कि वो वहां होते हुए भी वहां नहीं है। मैं उठकर आ जाता। माँ बाद में भी बोलती रहती, लेकिन पिताजी की आवाज सुनाई न देती थी। वो माँ की बातों में कभी दखल नहीं देते थे। वो जो कहती खामोशी से मान लेते और घर में बेताल्लुक से रहते। तब भी माँ उनसे नाराज सी रहती। पिताजी से बात करते हुए उसकी आंखें लोहे की गोलियों की तरह सर्द रहती, पेशानी पर बल होते और लहजे में तलखी होती। उसकी आवाज देर तक सुनाई देती रहती, किचन में, आंगन में, कमरे में। और हम सब भाई बहन सहमे से कोनों में दुबके रहते। पिताजी के हुक्के की गड़गड़ और भी तेज हो जाती और धुआं जल्दी जल्दी उनके मुंह से निकलने लगता और सर झुकाए अपनी मखसूस आराम कुर्सी पर खामोश बैठे रहते। मैं सोचता कि वो गोगी या डॉली के डैडी की तरह कड़कते गरजते क्यों नहीं। कभी कभी माँ को डांट क्यों नहीं दिया करते। बस माँ की उन लोहे की गोलियों जैसी सर्द नजरों से बचने के लिए पूजा के कमरे में चला जाता, जहां चांदी की लक्ष्मी फूलों में ढकी होती और फिजा में संदल और लोबान की खुशबू होती। माँ देर तक मूर्ति के सामने झुकी रहती। पिताजी उस कमरे में कभी नहीं गए थे। हालांकि वो हमेशा धर्म, कर्म और आत्मा परमात्मा की बातें करते। उनकी बातें दिलचस्प तो लगती, लेकिन तब समझ में नहीं आती थी। मूर्ति के सामने खड़ा मैं सोचा करता, माँ जब धर्म कर्म मानती है, पूजा पाठ करती है, तो पिताजी से क्यों लड़ती है? और वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? और हमें प्यार क्यों नहीं करती? कभी हमारा मुंह क्यों नहीं चूमती? छाती से क्यों नहीं लगाती?
اگر دودھ پینے کو دیتی ہے تو ڈانٹ کر، کھانا دیتی ہے تو گھور کر۔ ڈالی کی ماں کتنے پیار، کتنی نرمی اور محبت سے بات کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں میں ریبن ڈالتی ہے اور اسے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے اور مسکرا کر ٹاٹا کہتی ہے۔ ماں نے کبھی ہمارا ہاتھ منہ نہیں دھلایا، ہم پر اٹھ اٹھ کر رات کو کبھی رضائیاں نہیں ڈالی، ہمیں کبھی کہانیاں نہیں سنائیں۔ وہ لوری گا سکتی ہے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، وہ جھڑک سکتی ہے، گالیاں دے سکتی ہے، پیٹ سکتی ہے۔ مرو جا کر، میری جان کیوں کھا رہے ہو، اپنے باپ سے کہو جا کر۔ یہ سب مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کے باوجود وہ ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ اس شام بھی جب وہ پتا جی کے کمرے سے بڑبڑاتی نکلی تو اس کی پیشانی پر بل تھے اور ہونٹ بھیچے ہوئے تھے۔ میں چپکے سے پوجا کے کمرے میں چلا گیا اور وہاں ایک کونے میں دبکا اس چوہیا کو دیکھ رہا تھا جو چوکی کے پیچھے سے نکلی، ادھر ادھر دیکھ کر بتاشوں پر جھپٹی اور تھوڑا سا کتر کر بھاگ گئی۔ چونٹیوں کے قطار بتاشوں سے دیوار تک چل رہی تھی۔ کبھی کبھی دو چوٹیاں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی تو ایک سانحہ کے لیے رکتی، شاید آپس میں باتیں کرتی، ہیلو کیا حال ہے، کدھر چلیں، اور پھر اپنی اپنی راہ لیتی۔ مجھے اس کونے میں بڑا سکون ملتا۔ گھر کی بوجھل اور موت کسی خاموش فضا میں وہ کونا کہیں اچھا تھا۔ میں دیوار سے لگا بیٹھا چوہیا اور چیونٹیوں کا تماشا دیکھتا رہا کہ ماں آ گئی۔ آتے ہی اس کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی، جب وہ پلٹی تو مجھے دیکھ سکی۔ لپک کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ بتاشے چرانے گیا تھا؟ بہت پہلے کبھی میں نے یہ حرکت کی تھی اور ماں سے چانٹا کھا کر اور یہ سن کر کہ یہ پاپ ہے، پھر کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن ماں، وہ ہمیشہ ہی شک کرتی ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہیں، اور وہ بات کہنے سے پیشتر کبھی نہیں سوچتی اور پھر کبھی پشیمان بھی نہیں ہوتی۔ چوری کا الزام لگا کر وہ مجھے گھور رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جواب دینا فضول ہے، وہ اعتبار تو کرے گی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ تم سب نرک میں جاؤ گے، سب کے سب پاپی ہو۔ اس پل پتا جی چھڑی سنبھالے کمرے سے نکلے تھے۔ ماں کی بات سن کر ایک لمحہ کے لیے رکے۔ جاؤ، سیر کا حرج ہوگا، ماں کے لہجے میں زہر تھا۔ کبھی سوچا ہے کوئی گھر بھی ہے، بچے چوری کرنا سیکھ رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں چورایا، میں نے پتا جی کو بتایا۔ فیصلہ دینے والا بھگوان ہے، ہم نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ماں نے ہونٹ بچکا کر نفرت اور غصے کا اظہار کیا۔ دیکھ لینا وہ دردشا ہوگی سب کی کہ یاد کرو گے، سات جنم دکھ بھوگو گے، اور پھر مجھ سے جا مر پڑھ جا کر کیوں میری جان کے دشمن ہو رہے ہو۔ اس لمحہ میں نے ماں کے لیے سخت نفرت محسوس کی۔ کچھ دیر ماں بڑبڑاتی رہی، پھر گھر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں کتاب لے کر دیدی کے پاس جا بیٹھا۔ وہ نیٹنگ کر رہی تھی۔ میرا جی پڑھائی میں نہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پتا جی کہاں گئے ہوں گے۔ ان کا کوئی دوست نہیں تھا، فلم دیکھنے کا شوق انہیں نہیں تھا، کوئی ہابی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ آخر کرتے کیا ہیں؟ رات کو دیر سے لوٹتے ہیں۔ تب ماں جا کر دروازہ کھولتی ہے اور وہی سالوں پرانا جملہ سنائی دیتا ہے، ہو گئی سیر ختم، اور وہ پتا جی کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاتی ہے۔ اس وقت سب سو گئے ہوتے ہیں، میں جاگتا رہتا ہوں۔ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ جا کر دروازہ کھولوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ اس شام میں کنچے جیب میں بھر کر کھولے میں گیا تھا۔ کنچوں سے زیادہ مجھے پاروتی میں دلچسپی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ماں ہر وقت اسے برا کیوں کہتی ہے اور کہ وہ کیسے جادو کرتی ہے۔ کھیلتے کھیلتے میرے پاؤں میں کانچ کا ایک ٹکڑا چبھ گیا اور خون بہنے لگا۔ میں ماں کے ڈر سے رو بھی نہ سکا کہ وہ ایسے موقع پر ہاتھ سے بات کرتی ہے۔ تمام بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ شاید کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خون کو کیسے روکا جائے۔ اس وقت کھڑکی میں پاروتی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پپو کو چوٹ لگی ہے، بہت خون نکلا ہے۔ چند سیکنڈ بعد وہ میرا پاؤں پکڑے بیٹھی تھی، پھر وہ مجھے سہارا دے کر اپنے مکان میں لے گئی۔ روئی اسپرٹ میں تر کر کے میرا زخم صاف کیا۔ اسپرٹ نے زخم میں مرچیں سی لگا دی۔ میں چلایا تو وہ جھک کر پھونک مارنے لگی۔ مرد ہو کر اتنی سی چوٹ سے گھبراتا ہے؟ وہ ہنسی۔ چل کھڑا ہو جا، کچھ نہیں ہوا، ایسی چوٹیں تو روز لگتی ہیں۔ یہ لہجہ، یہ ہمدردی، یہ اپناپن میرے لیے بالکل نیا تھا۔ ماں ہوتی تو چانٹا مار کر پوچھتی، آنکھیں بند تھی؟
मेरे लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर लिया करो। और फिर वो दीदी से कहती, अरे पट्टी बांध दे इसके। मैं हैरत और शौक से उसे देख रहा था, उस सांप की तरह जो न होते हुए भी अंधेरे में महसूस होता रहता है। क्या देख रहा है रे? वो मुस्कुराई। तुम जादू से मुझे बटेर बना दोगी? मैंने एकदम कह दिया। वो खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा, ये किसने कहा है तुझसे? मैं चुप रहा और एकदम मुझे माँ से नफरत का एहसास हुआ, और न जाने क्यों मैंने सोचा कि माँ से इंतकाम लेने का यही बेहतरीन मौका है। मैंने दबे लहजे में कहा, माँ कहती है। पार्वती एकदम संजीदा हो गई, फिर हंसने लगी। मेरा ख्याल था कि वो माँ से नफरत का इजहार करेगी, उसे गालियां देगी और इस तरह मेरे जज्बे इंतकाम की तस्कीन हो जाएगी, लेकिन मेरे इस जज्बा पर उसने हंसकर ओस डाल दी। मैंने पूछा, जादू कैसे करते हैं? जादू कोई चीज नहीं है। आदमी को जादू से नहीं, मोहब्बत और प्यार से जीता जाता है, और जो मोहब्बत कर सकते हैं भगवान उनसे खुश होता है। पिताजी भी यही कहते हैं। पार्वती ने मेरी तरफ देखा और स्पिरिट की शीशी उठाकर अलमारी में रखने चली गई। उस वक्त बाहर माँ की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। शायद किसी ने माँ को खबर कर दी थी। मैं सहम गया। पार्वती मेरे करीब आई, मेरे सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से बोली, तुम्हारी माता जी हैं। मैंने खौफजदा आंखों से उसकी तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। उस पल तो मैंने सोचा कि पार्वती मुझे जादू से बटेर ही बना दे और माँ देख कर चली जाए। जो डरते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। तुमने कोई पाप नहीं किया, वो बोली। आओ, और मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई। माँ ने मुझे घूर कर देखा और यूं मेरा हाथ झपट लिया जैसे मैं उड़ा जा रहा था। इसे कांच चुभ गया है, मैंने जख्म धो दिया है, घर जाकर टिंचर लगा दीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे पता है, माँ ने तल्खी से कहा, और मुझे घसीटती हुई घर ले गई। ऊपर पहुंचकर उसने मुझे पिताजी के सामने खड़ा कर दिया और गुस्से से बोली, देखिए अपने लाडले की करतूत, पूछो उससे कहाँ गया था। पिताजी ने गहरी नजरों से मुझे देखा और सर झुका लिया। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं, जो मैं कहती हूं वो होता नहीं। फिर वो मुझे झिंझोर कर बोली, बोल कहाँ गया था? खेलने। खेलने के बच्चे, मैं पूछती हूँ उस कलमुही के घर क्या करने गया था? वो खुद ही ले गई थी, मैंने डर के मारे कह दिया। देख लिया? माँ ने पिताजी की तरफ देखा। मैं कह देती हूँ इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ले गई रांड मरहम पट्टी करने, माँ से सगी फुफ्फे कुटनी। कंजरी कोई जादू टोना करेगी मेरे बच्चे पर। अपना कोई आगे पीछे है नहीं, दूसरों के देख नहीं सकती। मेरी तो चंडाल जन्म जन्म की बैरन है। न जाने मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। हे भगवान, मरती भी नहीं, हट्टी कट्टी फिर रही है, इसे आए किसी की आई। पिताजी सर लटकाए खामोश बैठे रहे। उनका हाथ कुर्सी के बाजू पर पड़ा कपकपा रहा था, टांगें लरज रही थीं और निचला होंठ उन्होंने जोर से दांतों तले दबा लिया था। माँ का गुस्सा एकदम और तेज हो गया। उसने जोर से मेरी पीठ पर 2 हत्थर जमाया और लात मारकर बोली, अब वहां गया तो टांगें तोड़ दूंगी, समझे? और वो मुझे घसीट कर बाहर ले गई। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। उस रात भी पिताजी देर से लौटे। जब माँ थक कर अपने बिस्तर पर पड़ गई तो वो मेरे पास आए। भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। पिताजी 1 मिनट तक खड़े अंधेरे में मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने मेरे सिरहाने एक पैकेट रख दिया और चले गए। मैंने अंधेरे में टटोल कर पैकेट खोला तो उसमें सैंडविचेस, पेस्ट्रियां और बन थे। मैं 1 मिनट तक हाथ से वो चीजें महसूस करता लेटा रहा। फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने महसूस किया कि मैं पिताजी से बेहद मोहब्बत करता हूं। मैं उस शख्स के अंदर देख रहा हूं जो मेरे सामने भी नहीं। मैं अंधेरे में लेटे लेटे खाता रहा और सो गया। सुबह उस पैकेट की वजह से माँ और पिताजी में लड़ाई हुई। पिताजी ने सिर्फ इतना कहा कि वो बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। माँ और भी भड़क उठी और जो जी माँ आया कहे चली गई। पिताजी हस्बे मामूल खामोश रहे। तुम चाहते हो कि घर में मेरी कोई इज्जत न रहे, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ उकसाते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जो मैं कहती हूं तुम उसके खिलाफ हो जाते हो। चली जाऊं घर छोड़कर? पर याद रखो, इतनी आसानी से मैं भी नहीं जाने वाली। और फिर वही रोना धोना, ठंडा चूल्हा और मौत की सी सर्द और जर्द फजा।
उस रोज पिताजी मुझे अपने साथ सैर कराने ले गए। यह पहला मौका था कि उन्होंने अपने साथ किसी बच्चे को लिया था, वरना हम में से किसी को मालूम ही न था कि बाप की उंगली पकड़कर बाजारों में से गुजरना, खिलौनों और मिठाइयों के लिए जिद करना क्या होता है। उस दिन मुझे एक तरह की हिफाजत और बड़ेपन का एहसास हुआ, और उन तमाम चीजों और मनाजिर के मानी ही बदल गए जो मैंने स्कूल से आते जाते अकेले देखे थे। अब उनमें वो अकेलापन नहीं था जो दिल को अजियत पहुंचाता। हम मंदिर में जा बैठे। मैं तालाब में मछलियों को देख रहा था और पिताजी की आंखें मंदिर के कलश पर चमचमाती धूप पर थीं। मेरा दिल मछलियों के साथ तैरते और पानी में गोता लगाने को कर रहा था। लोग मंदिर में आ जा रहे थे, उनके हाथों में फूल और प्रसाद था। तुम पार्वती के यहाँ क्यों गए थे? अचानक उन्होंने पूछा। एक मछली सतह पर तैरते फूल को सूंघकर पानी में गोता लगा गई थी। पिताजी, पार्वती बुरी औरत है। वो देखो फूल। कोई तुमसे पूछे कि यह क्या है तो तुम फौरन कह सकते हो कि यह फूल है, लेकिन तुम यह तो नहीं बता सकते कि पानी के अंदर तालाब की तह में क्या है और समुंदर की तह में क्या है। ये तो तुम बिल्कुल नहीं बता सकोगे, क्योंकि तुमने वहां पहुंचकर देखा ही नहीं, और जो सुनकर सीखते हैं वो पूरी तरह नहीं सीखते, और जो खुद तलाश करते हैं और गहराई में डूबकर पता लगाते हैं वही पूरी तरह सीखते हैं और समझ पाते हैं। मुझे उस वक्त पिताजी की बात समझ में नहीं आ सकी, लेकिन दिलचस्प मालूम हुई। उनकी भारी गंभीर आवाज दिल तक पहुंच रही थी और उस धूप की तरह अच्छी अच्छी लग रही थी जो सर्दियों में सरसों के खेतों पर चमकती है और बदन को मीठी मीठी हरारत बख्शती है। पिताजी उस शीशे की तरह लग रहे थे जिसके आर पार देखा जा सकता है, और उस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो आराम कुर्सी में नीम दराज हुक्का पीते थे और किसी से कोई ताल्लुक न रखते थे। तुम मंदिर में जाना चाहो तो जा सकते हो, पिताजी ने कहा। मैं मंदिर के अंदर जहां मूर्तियां थीं चला गया। बड़ी बड़ी सोने चांदी और फूलों से ढकी हुई मूर्तियों और चांदी की छत और दरवाजों वाले कमरे और सोने की तरह चमकते सतून देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने हाथ जोड़कर आंखें मूंद ली और प्रार्थना की कि मां पिताजी से लड़ना बंद कर दे और पार्वती को बुरा भला न कहे, जो मंजूर नहीं हुई। प्रार्थना करके मैं बाहर आ गया। पिताजी तालाब में मछलियों को आटा डाल रहे थे जो भारी तादाद में पानी की सतह पर आ गई थी। चलें? उन्होंने पूछा। हम मंदिर की हुदूद से निकल आए। कुछ बच्चों को खिलौने और मिठाई लेते देखकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे? मैंने इनकार कर दिया। फिर मैंने अपनी प्रार्थना के बारे में बताया तो वो सामने देखते हुए बोले, हाँ, माँ के लिए दुआ क्या करो। पिताजी, माँ आपसे लड़ती क्यों है? इसमें उसका कोई कसूर नहीं। फिर किसका कसूर है? शायद किसी का भी नहीं। पिताजी, मेरी किताब में लिखा है कि किसी को बुरा मत कहो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी से लड़ो नहीं और सबसे मोहब्बत करो। हाँ, किताबों में यही लिखा होता है। फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। हम घर की तरफ लौट रहे थे। मैंने देखा पिताजी के चेहरे पर वही गम, वही बेजारी और वही उदासी की स्याह परछाइयां तैर रही हैं, और वही पथरीलापन सारे जिस्म पर छा गया है, और वो एकदम अजनबी, गैर और दूर हो गए हैं। पार्वती कई दिन खिड़की में दिखाई नहीं दी। मशीन की आवाज भी सुनाई नहीं दी। फिर एक शाम को गोगी से मालूम हुआ कि वो बीमार है और अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती है। मेरे दिल में उसे देखने की शदीद ख्वाहिश बेदार हुई, लेकिन माँ का डर था वो टांगें तोड़ देगी। मैंने एक शाम पिताजी के साथ सैर करते हुए कहा, पिताजी, पार्वती को बुखार आ रहा है। वो दूर उफक पर फैले दरख्तों की स्याह कौस को देख रहे थे। मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उनकी उंगलियों में लर्जा महसूस किया और उनके चेहरे पर जैसे सब कुछ पिघल रहा था। वो फिर दरख्तों के उस कौस को देखने लगे। मैंने फिर कोई बात नहीं की। वापसी पर हम मंदिर गए। पिताजी ने बाहर से आटा लिया और गोलियां बनाकर मछलियों को डालने लगे और मैं अंदर चला गया। जब मैं बाहर आया तो पिताजी मंदिर के गेट की तरफ देख रहे थे। मुझे देखकर वो आगे बढ़ाए और मेरे शाने पर हाथ रख दिया। कुछ बोले नहीं। मैंने भगवान से कहा है कि वो पार्वती को जल्दी से अच्छा कर दे। पिताजी खामोश रहे। सिर्फ उनके हाथों का दबाव मेरे शाने पर कदरे बढ़ गया, और जैसे वो पिघल पिघल कर मेरे वजूद में सरायत कर रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी, आप मंदिर में क्यों नहीं जाते?
बड़ा होकर आदमी सच्चा नहीं रहता, उसे डर लगने लगता है। भगवान से नहीं, अपनी कमजोरियों और पापों से कि वो जो दिखाई नहीं देता देखता है। पाप क्या होता है पिताजी? माँ कहती है बताशे उठाकर खाने से पाप लगता है और आदमी नरक में जाता है। पाप वो है जो तुम ठीक समझते हुए भी न करो, और जिनमें सही कदम उठाने का हौसला नहीं होता वो पापी होते हैं और इस दुनिया में नरक भोगते हैं और दुखी रहते हैं। दूसरे दिन शाम को मैं पार्वती के यहाँ चला गया। माँ की नाराजगी का डर एक लम्हा के लिए सांप की तरह फनकारा था, लेकिन मैंने उसका सर कुचल दिया। पार्वती के कमरे में जर्द और मध्यम रोशनी वाली लालटेन जल रही थी, जिससे कमरे की उदासी और भी बढ़ गई थी। पार्वती दीवार के साथ चारपाई पे कंबल लपेटे पड़ी थी। उसका चेहरा जर्द, होंठ खुश्क और बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। उसने मुझे देखकर पुकारा, पप्पू। मैं उसके करीब चला गया और बिस्तर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। पार्वती ने कंबल से हाथ निकालकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने बिस्तर पर बिठाया। उस लम्हा मुझे ऐसा लगा कि मैं पार्वती के वजूद का एक हिस्सा हूं और वो बेचैनी जो मेरे दिल में थी उसके छू देने से एकदम दूर हो गई। कल मैंने मंदिर में प्रार्थना की थी कि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। क्यों? मुझे खुद ने मालूम नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मैं खामोश बैठा रहा और उसकी नर्म उंगलियों का लम्स अपने हाथ पर महसूस करता रहा। उसने शायद अपनी आंखें पोंछी थीं, फिर वो होंठों पर जबान फेर कर बोली, तुम्हारी माताजी को मालूम हो गया तो? तुम्हें मालूम होगा पिताजी माँ से कभी नहीं कुछ कहेंगे। माँ उनसे लड़ती है। पहले पिताजी किसी को साथ लेकर नहीं जाते थे, अब सिर्फ मुझे साथ लेकर जाते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। पहले मुझे उनसे डर लगता था, अब नहीं लगता। वो बाहर जाकर बातें करते हैं, घर में बिल्कुल नहीं बोलते। क्या बातें करते हैं? मुझे पूरी तरह उनकी बातें समझ में नहीं आती और जो समझ सका उसे बयान करने के लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं, इसलिए मैं फिर खामोश हो गया। चंद सेकंड कमरे में खामोशी रही, फिर मैंने कहा, माँ कहती है तुम बहुत बुरी हो और हमारी दुश्मन भी। वो छत को देखती हुई हंस दी, फिर बोली, फिर तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम मुझे अच्छी लगती हो। पार्वती ने मुझे सीने से लगा लिया। कई मिनट इस तरह गुजर गए, फिर उसने वही बात की जो पिताजी ने कही थी और मैं हैरान था कि दोनों ने एक ही तरह कैसे सोचा। तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है ना? माँ के लिए फिर करना। फिर वो मेरे स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछने लगी और यह कि मैं पढ़कर क्या बनूंगा और कैसे रहूंगा। इतनी दिलचस्पी से न माँ ने कभी पूछा था और न पिताजी ने, न ही मुझे मालूम था कि मुस्तकबिल में मुझे क्या करना है। उस रोज पार्वती की दवा लेने भी मैं गया। वापसी में माँ ने देख लिया। उसने पूछा भी, दवा किसकी है? लेकिन मैं जवाब दिए बगैर भाग आया और दवा पार्वती को देकर घर चला गया। माँ उस वक्त पिताजी के सामने कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी और थानेदारों की तरह बोल रही थी। उसने एक दो मर्तबा पार्वती का और मेरा नाम भी लिया था, इसलिए मैं समझ गया था कि मेरा ही जिक्र चल रहा है। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि माँ ने देख लिया और लपक कर मुझे गर्दन से दबोच लिया। जा कहाँ रहा है, इधर आ, और मुझे घसीट कर पिताजी के सामने ले आई। जान से मार दे इसे, मुझे क्या कहती है, मैं क्या करूं? पिताजी ने नहायत लाताल्लुकी से कहा, जान से तो तुम मुझे मारोगे। माँ फुनकारी, इसे और सर चढ़ाओ और साथ लिए लिए फिरो, खूब मेरे खिलाफ सिखाओ। तुम्हें चैन ही उस दिन आ जाएगा जिस दिन मेरी अर्थी उठेगी। इतने इतने बच्चों से मेरी बेइज्जती करवाते हो। माँ आंखों पर पल्ला रखकर रोने लगी। दीदी और भैया आ गए और दरवाजे में खड़े होकर अंदर देखने लगे। अंदर आने की हिम्मत न कर सके। क्यों गया था वहां? पिताजी ने कड़क कर पूछा। मैं सहम गया। पहली बार वो इस तरह करके थे। उनके नथुने फूल रहे थे और होंठ कपकपा रहे थे। चेहरा दमक रहा था। उन्होंने पूरे जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। मैं लड़खड़ा गया। कौन थी वो तेरी? क्यों गया था वहां? पिताजी ने हुक्के की नई निकाल ली थी और धड़ाधड़ मुझ पर बरसाने लगे और बार बार एक ही जुमला दोहरा रहे थे, कौन लगती है वो तेरी? वो मुझे उस वक्त तक मारते रहे जब तक नय टूट नहीं गई। माँ ने रोना बंद कर दिया था और दहशत ज़दा सी बैठी मुझे तके जा रही थी। पिताजी ने फेंक कर थके टूटे से कुर्सी पर
पिताजी ने फेंक कर थके टूटे कुर्सी पर गिर गिर पड़े थे। उनके हाथ पांव में लर्जा था। न जाने क्यों मुझे उन पर बेख्तियार प्यार आ गया और मां पर शदीद गुस्सा। कितनी बेदर्दी से मारा है बच्चे को, मां दीवार के साथ लगी कह रही थी। उस रांड से पूछो जाकर जो मेरे पीछे पड़ी है, उसके तन बदन में कीड़े पड़े, 7 जन्म अंधी हो। बकवास बंद करो, पिताजी चीखे। पहली मर्तबा मैंने उन्हें घर में इस तरह बोलते हुए सुना था। एकदम मां खामोश हो गई थी। घर पर सन्नाटा छा गया था। मैं खुश हुआ कि वो इस तरह गरजते थे। मैं बमुश्किल तमाम खुद को संभालता हुआ अपने बिस्तर पर जाकर ढेर हो गया। पिताजी कोट पहनकर जब चले गए तो मां देर तक पार्वती को कोसती रही। मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरा तमाम बदन दुख रहा था। मैं चाह कर भी रो नहीं पा रहा था। उस रात पिताजी बहुत देर से लौटे। देर तक उनके कदमों की आवाज कमरे में सुनाई देती रही, जैसे वो जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहे हों। घर में सन्नाटा था। मां एकदम मयानी में जाकर सोई थी। मैं जाग रहा था। फिर वो भारी कदम मुझे अपनी तरफ आते हुए महसूस हुए। मैं दम साधे पड़ा रहा। मैंने बंद आंखों से देख लिया कि पिताजी मुझ पर झुके खड़े हैं और गौर से मुझे देख रहे हैं। फिर वो बिस्तर पर बैठ गए और धीरे धीरे मेरे बदन पर हाथ फेरने लगे। मुझे लगा कि वो दर्द, वो जलन उन उंगलियों ने बाहर खींच ली है और मैं भला चंगा और फूल की तरह हल्का हो गया हूं। मैं आंखें खोल नहीं सका। मैं महसूस कर रहा था कि पिताजी का चेहरा उतरा हुआ है और उदास है और मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकूंगा। फिर वो उठकर अपने कमरे में चले गए और उस रात भूख के बावजूद मुझे नींद आ गई। कई दिन मैं स्कूल नहीं गया, खेलने भी नहीं गया। उन दिनों माता पिताजी से लड़ी भी नहीं, लेकिन फिजा ज्यादा बोझल और सर्द सी रही। मुझे यह भी मालूम न हो सका कि पार्वती कैसी है। किसी से पूछा भी नहीं जा सकता था। पिताजी उन दिनों और भी दूर हो गए थे। वो सर लटकाए खामोश बैठे हुक्का पीते रहते या अखबार पढ़ते रहते। वो मुझे देखकर चले जाते। जब मैं चलने फिरने के काबिल हो गया तो वो मुझे अपने साथ सैर कराने ले गए और मैं भूल गया था कि उन्होंने मुझे मारा था। नहर की पट्टी पर खुश्क भूरे पत्तों पर चलते हुए उन्होंने कहा था, बैरूनी मार से अंदर की मार ज्यादा खतरनाक होती है। वो मार जो जमीर मारता है। यह मार तो तुमने बर्दाश्त कर ली, जमीर के खिलाफ कभी कुछ न करना। उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। स्कूल के साल खत्म हो गए। मैं पार्वती से बेधड़क मिलने लगा। उसके बालों में सफेद तार नजर आने लगे। वो बाल अब भी खुले रखती थी। मैंने उससे एक आध बार पूछा भी कि वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन उसने कभी खातिर खाह जवाब नहीं दिया। हंसकर कहती, तू तो पागल हो गया। और हमारी बातें इस तरह भटक जाती और मेरा सवाल सवाल ही रह जाता। माँ अब ज्यादा दखल नहीं देती थी। दीदी की शादी हो गई थी। भैया हॉस्टल चला गया था। माँ तो जैसे थक गई थी, लेकिन पिताजी के मामूल में कोई फर्क नहीं आया था। वही बस सैर और वही घर में आराम कुर्सी पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना। मैं कॉलेज की फजाओं में सांस ले रहा था और पिताजी की बातें कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। उन्होंने बात करना कम कर दिया था। मेरी जिंदगी भी घर की चार दीवारी से बाहर फैली वसी दुनिया में गोते लगा रही थी और सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। हर चीज, हर शय के मानी बदल रहे थे, रूप बदल रहे थे। बाहर से तो वही रूप था, लेकिन अंदर से कुछ और नजर आने लगा था। मैं अब बहुत कम पार्वती के यहाँ जाता। दरअसल बाहर मेरी दिलचस्पियां बढ़ गई थीं। कई दिन गुजर जाने पर जब मैं पार्वती को मिलने जाता तो वो बहुत उदास सी मिलती और ऐसी बातें करती जैसे वो सब कुछ त्याग चुकी हो। फिर जब एक दिन मैं पहुंचा तो पार्वती कंबल लेटे पड़ी थी और सर्दी महसूस कर रही थी। मैंने जब उसकी नब्ज देखी तो बुखार मालूम हुआ। तुम्हें तो बुखार आने लगा है, वो मुस्कुरा दी। दवा खाई? अब बस। क्या बस? बैठ जा। अब अब तो तू भी नहीं आता रे। मैं वो दरअसल बात यह है कि मैं सब समझती हूँ। वो हंसी। अब यार दोस्तों में जी लगता होगा। देख, पढ़ाई का हर्ज मत करना, नहीं तो कान लंबे कर दूंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी दवा ले आऊं? मेरे पास बैठ जा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। फिर न जाने क्या हुआ कि उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। 1 मिनट तो मैं खामोश देखता रहा, फिर मुझसे रहा न गया। रोने लगी? कुछ नहीं, वो आंसू पोंछने लगी।
फिर वो बोली, अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं मर गई तो मुझे याद करेगा? ऐसी बातें करोगी तो मैं चला जाऊंगा। हाँ तू अभी चला जा, जा चला जा। वो फिर रोने लगी। देखो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। वो खामोश रही। मैं जाकर उसकी दवा ले आया। दूसरे दिन उसका हाल मालूम करने गया। बुखार बढ़ गया था और वो नीम बेहोशी की हालत में पड़ी थी। घबरा कर मैं डॉक्टर को बुला लाया और उसके मशवरे पर पार्वती को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जिस वक्त मैंने एम्बुलेंस गाड़ी के लिए फोन किया तो पिताजी कमरे में तेज तेज चक्कर लगा रहे थे। बार बार वो सीढ़ियों की तरफ जाते फिर लौट आते, आखिर कुर्सी पर जैसे ढेर हो गए और सर थाम कर बैठ रहे। 3-4 दिन उनकी यही कैफियत रही। वो जैसे मुझसे बात करने की कोशिश करते फिर रह जाते। हमारे घर में फिर एक अजीब सा तनाव आ गया था, जैसे अब कुछ टूटने वाला है। माँ जो थक सी गई थी, अब फिर अपने आप को जैसे तरोताजा महसूस करने लगी थी। वो गौर से पिताजी की तरफ देखती और पूजा के कमरे में चली जाती और देर तक वहां घंटियां बजाती रहती। मुझे दिन में 3-4 मर्तबा अस्पताल जाना पड़ता। एक दिन माँ जब पूजा के कमरे में थी तो पिताजी मेरे सामने आ खड़े हुए और चंद सानिये वो इस तरह मुझे देखते रहे। फिर चारों तरफ देखकर आहिस्ता से निढाल सी आवाज में बोले, तेरे पास पैसे खत्म हो गए होंगे, और जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। उसी शाम पार्वती ने प्राण त्याग दिए। मैं उस वक्त अस्पताल में ही था। पार्वती मुझे देखकर मुस्कुराई थी। उसके होंठ हिले थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कुछ कह न सकी। बस आखिरी सांस लिया। उसके बाल खुले तकिए पर उसके खुले बाल तकिए पर फैले हुए थे। पार्वती के फूल मैंने परवाह किए, अब उसकी याद बाकी है। घाट सुनसान है और जरा फासले पर जलती हुई धीमी सी जर्द रोशनी बिल्कुल अकेली अकेली सी लग रही है। लेकिन वो सलाखों वाली खिड़की अब बंद हो गई। किसी ने मेरे कंधे पर आहिस्ता से हाथ रख दिया है। शायद चौकीदार है। अब मुझे चलना चाहिए। चौकीदार नहीं, पिताजी हैं। वो मंद मंद बहते पानी और उस पर झिलमिलाती रोशनी को देख रहे हैं और मैं उनके दिल की गहराइयों को झांक रहा हूं। ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक साज है जिसका तार टूट गया है और एक दर्द भरी झनकार सारी फिजा में फैल रही है और फैलती जा रही है।